वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन्नवाखे गुरु साहिब जियो हम मैले उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। इको ना लाओ। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर प्रोफैसर अनिल कुमार जी वालों जो IAS स्टडी सर्कल तालीम दिती जाती है उस मालिक दा शुकराना करन दे लई ये विशेष गुरमत समागम आयोजित किए गए ने। आप जी अमृत गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन आप विच वरतन अपने अमृत बचना दी विचार प्रेम भावना तुर अंदर दी एकाग्रता नाल आप ही करा लैन। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुकराना लफ्ज फारसी दा है शुक्र और असी इस शब्द नू इस लफ्ज नू अपने जीवन विच बहुत बारी वरतने का पर आम तौर ते शुकराने दा मतलब कृतज्ञ होना
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਖਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਰੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਰੰਗ ਰੱਤੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਤਨੇ ਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਖ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। मैं सिर्फ ये नहीं कि नैगेटिव अप्रोच लैके बोलन लगा। मेरी बेनती है कि शुकराना बहुत उच्ची सुरत का नाम है। शुकराना वो शब्द है सिखी च कि सच एवे कि जिथे दुनिया का कोई भी वरतारा वरते, सुख होवे दुख होवे, कोई वरतारा भी सिख दी सुरत नूं रब ते गुरु तो दूर ना कर सके। महाराज जी ने कहा, जे सुख देह ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤੀ ਰਾਜਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਕੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ आ है शुकराना, दुख भी सुख मनाई। महाराज ने किड्डी वड्डी गल कह दी। मैं एक होर बेनती आप जी नूं करा, क्योंकि आपां भावें साल करोने च निकल गया, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दा 400 साला आगमन पुरब यतन करके जिन्ना कोई मना सके सारियां यतन किया। मैं बाहर सी ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਕਥਾ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਜਰਬਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, जितना मर्जी किसी को समग्री होवे, कलियां बैठ के वो आनंद नहीं होता।
संगत विच दाता आप वरतदा है। मैं बेनती करा जदों सारे शब्द कर रहे सा 59 शब्द, क्योंकि पहला शब्द है सतगुरु दा साधो मन का मान त्यागो। गल आपां शुकराने दी कर रहे हैं। इत्थे सतगुरु ने साधो शब्द वरते है, आम बंदे लिए नहीं वरत्या। हालां ये शब्द सारी मानवता ਲਈ है। महाराज कहते ने साधो मन का मान त्यागो। इत्थे ये ते क्या है नहीं तन का मान त्यागो, क्योंकि आम तौर ते मनमुख बिरती वाला अपने हंकार नू अपने मान नू तन विचों प्रगट कर दिंदा है। जबान तो बोल के जी मेरा केड़ा मुकाबला कर लेगा, मेरे को जो कुछ बोल सकता है। पर इत्थे साधो दा अर्थ है साधना करने वाले लोगों, देखियो तुहाडे अंदर ख्याल दे रूप विच खौमे ना पैदा हो जाए। जे साधना करनी है तो मन दे खंकारी फुरने त्याग दिओ। फुरना त्यागना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हौमे दा संबंध केवल पदार्थ नाल नहीं, हौमे दा संबंध परमार्थ नाल भी बन जाता है। जदों असीं ये पाठ करने, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे पंच जना सो संग ना छुटकियो, अदक आहंग बुद्ध बांधे। हुण देखो इहदे विच पाठ करना, एक पासे असीं कहने पाठ करो, असीं कहने विचार करो, चंगा जीवन कमाओ, पर उत्थे भी गुरुदेव कह रहे आ कि कई बारी इंसान परमार्थ दे रस्ते ते चलदा चलदा अपनी कमाई दे जदों खौमे च आउंदा है, वो खौमे दा एक फुरना ये बन मार दिंदा, बंदे दी रस नूं रोक के रख दिंदा है। महाराज जी ने उत्ते शब्द वरत्या साधो मन का मान त्यागो, ते होर कुछ फुरने तंग करदे आ, काम दे, क्रोध दे ते माड़े बंदियां दी संगत। जिसने साधना करनी है, गुरु तेग बहादुर साहब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल भी सोल साहब मेरे को घर बैठे, गुरु तेग बहादुर साहब जिथे भी गए उन्होंने तकरीबन भोरे विच बैठ के ही इबादत की है। बाबा बकाला साहब भी भोरा, ते आप जी आज आनंदपुर साहब जाते हो, उत्थे भी सतगुरां दी जिहड़ी रहائश है उहदा नाम ही भोरा साहब है। बल्ले दी गल कर रहे संसोल साहब, उत्थे जदों पटाई होई महाराज जिन्ने दिन रहे उत्थे भी भोरा है। इत्थे महाराज साधना दी गल कर रहे हैं कि अपने मन दे अंदर उठदे ख्यालां नूं, खौमे दे ख्यालां नूं त्याग दिओ। पर याद रखियो ख्याल नूं केवल ख्याल ही खत्म कर सकदा। फिर बेनती है, डांगा नाल नहीं खत्म हुंदे, धक्के नाल खत्म नहीं हुंदे। सच एवे कि शब्द ही कौमे दियां जड़ां पट सकदा है, शब्द तो बिना कोई नहीं। इहदे च इन्नी सुचेतता है। खैर मेरा विषय नहीं, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐन सभागो। पर एक जगह ते महाराज जी ने होर क्या सलोकां विच, जतन बहुत मैं कर रहे हो मिटियो ना मन को मान बड़ा खतरनाक है। इत्थे फिर शब्द वरते कि मैं बड़े जतन कीते, बाहर मुखी मैं जोड़े भी झाल लांगा, बाहर मुखी मैं झुक भी जाऊंगा, शब्दावली वरतांगा, तुहाडा दास खां, झाड़ू बरदार खां, मैं कूकर खां, मैं नचीज खां, मैं पा खा खां, पर अंदर दा फुरना कहेगा नहीं ओए, तेरी इस निम्रता का भी प्रभाव लोग कबूल दे पे। कि डूंगा शब्द है, जतन बहुत मैं कर रहे हो मिटियो ना मन को मान। जिथे मान आवेगा उथे गुरमत नहीं आनी, उथे दुरमत ही आवेगी। दुरमत शब्द है, जतन बहुत मैं कर रहे हो मिटियो ना मन को मान, दुरमत स्यो नानक फदियो राख लिहो भगवान। मेरी बेनती है 59 शब्दां च बड़े शब्द ऐसे, क्योंकि मेरी इच्छा सी मैं बोलना शुकराने थी, पर मन च आया मना अगे आए सा प्रोग्राम कीता सी ननकाना साहब दे साके दा जी, ते अदकी मन सी साल मुकन वाला है, ते संगत नाल गुरु तेग बहादुर साहब दे कुछ बचन जरूर साझे करके जा। महाराज जी दी बाणी च 59 शब्दां च ज्यादा शब्द जेड़े ने ना जी अपने आप नूं संबोधन करके कहे, ते जिन्नी मन लफ्ज दी वरतों गुरु नानक साहब दे 9वें स्वरूप ने कीती अपनी रचना च, शायद इन्नी किसे मन शब्द दी वरतों कीती होवे। आप श्लोकां च पढ़ लो। उंज मेरी बेनती है कि आपां मना रहे हैं ना जी, जे तुहाडे कोल टाइम है 59 शब्द रोज नितनेम च करिए। नितनेम कदी नहीं घटाना चाहिए,
मेरी बेनती है उम्र जिन्नी घटदी होवे उन्ना बाणी वधा देनी चाहिए है, क्योंकि कम कंधी उत्ते रुखड़ा है। जे 59 शब्द नहीं पढ़ सकते तो मैं बेनती करांगा 57 श्लोक मिनट 10 लगते आ पढ़न दे इकल्लिया नितनेम च। जे वो भी नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 4 शब्द जयजावंती राग दे पढ़ लो। वो 4 शब्दों में गुरु तेग बहादुर दी सारी बाणी का निचोड़ है। बीत जय है बीत जय है जन्म आकाश दे। मैं बेनती आपनू जिहड़ी कर लगा, सारी बाणी च उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को संबोधन किया, पर हालां उन्हां दा जीवन है नहीं। महाराज जी ने क्या मन रे कौन को मत तैली नहीं, अपने आप क्या मन रे ऐ मेरे मन संबोधन किया कौन को मत तैली नहीं, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। मन रे कहा भयो तय बौरा ऐन सौद घटै नहीं जाने भयो लोभ संग खौरा। मन की माहे रही ना हर भजे ना तीरथ सेवे चोटी काल गही। महाराज ने क्या बाणी च जाग लिखो रे मना जाग लिखो कहां गाफिल सोया। किन्ने शब्द अपने आप ਨੂੰ मैं ज्यादा प्रमाण नहीं मन ਨੂੰ समझाया, पर सारी बाणी दे 59 शब्दां दी कथा करदे आ ना जी, 2 शब्द आए जिन्हां विच सच एवे गुरु तेग बहादुर दा अपना आत्मक जीवन सी। आप कहोगे बाकियां च नहीं। हुण ले आ शब्द पढ़िया पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। गुरु तेग बहादुर साहब च ये ऐब थोड़ा है। जाग लिखो रे मना जाग लिखो कोई सुते खोए ने, वो सानू बहुत फर्क इन्ना है। विद्वान क्षमा करो वो जदों भी कथा विचार करेगा दूजिया नू कहेगा तुसी ऐसे। आत्मक जीवन कमाण वाला दूजे दे औगण अपने ते टुका के गल करेगा। फिर बेनती सुनियो, आम बंदा कहेगा तुहाडे च आ नुक्स यही ते कथा है ना भी आ नुक्स लोग खुश होंदे आ, बड़ा सच बोलदा है। पर मैं एक बेनती करा गुरमुखो, जिदन अंदर झाती मारन लग पांगे ना अपने अंदर ही इन्ना कोई दिसन लग पैंदा दूजे नू संबोधन करन दी लोड़ ही नहीं पैंदी, क्योंकि अपने अंदर सब कुछ है। 2 शब्द वो सानू समझाने लिए क्या 2 शब्द जी। एक तो मैं बेनती की सी, एक शब्द की व्याख्या गुरु तेग बहादुर साहब दियां 3 पीढ़ियां ने की है। आ कथा तो चलो घंटे च हो जाएगी, वो हुक्मनामा आ जाएगा हो जाएगी, पर प्रैक्टिकल तौर पे 3 पीढ़ियां ने कथा की। गुरु तेग बहादुर साहब ने खुद की, गुरु तेग बहादुर साहब दे महल माता गुजरी जी ने की, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने की, ते गुरु तेग बहादुर साहब दे लाला ने पोतियां ने खास करके छोटे साहबजादियां ने उदी कथा की। हुण मन च आएगा मैं कथा लफ्ज वरत रहा गुरमुखो, वो शब्द तुहानू सब नू चेते है। वो शब्द है जो नर दुख में दुख नहीं माने। महाराज ने सच्ची मुच्ची उदी व्याख्या जीवन च की। केड़ा दुख है जिहड़ा उन्हां ते नहीं आया। अपने वालों गोलियां चलियां इथों तक 1636 तो लैके 1699 तक हरमंदर साहिब दा प्रबंध मीणियां दे कोल सी। गुरु तेग बहादुर साहब मत्था टेकन गए, सच्ची सरकार नू अंदर मत्था नहीं टेकन दिता। जिथे थड़ा साहब आप दर्शन करते, अपने वालों विरोध, हकूमत वालों विरोध, पर महाराज जी की जिंदगी च जिथे भी दुख आया अंतला समा दुख दा शिखर सी, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने दुख आया दुख नू दुख दे रूप में स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने अपनी सुरत दे नेड़े दुख वाला फुरना ही नहीं जान दिता। फिर बेनती जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने सुख नाल मुहब्बत नहीं ते दुख नाल नफरत नहीं। किन्नी उच्ची गल है। मैं तां कहा जी असी कथा करांगे 10-15 मिनटां च अर्थ हो जाणगे, पर जदों गुरु तेग बहादुर की व्याख्या करनगे ते 3 पीढ़ियां दे दर्शन होणगे। केड़ा दुख गुरु गोबिंद सिंह जी ते नहीं आया जी, केड़ा दुख मात गुजरी जी ते नहीं आया, केड़ा दुख गुरु के लालां ते नहीं आया। इस शब्द नूं ये रूहानियत दा शिखर है शब्द, जिन्हों आप ब्रह्म ज्ञानी कहने, ये ब्रह्म ज्ञानी दा जीवन है शब्द। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन माटी माने, न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना,
हर कसोग ते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग है। ये सारे आत्मिक जीवन नाल संबंधित गल्लां ने। आसा मनसा सगल त्याग है जग ते रहे निराशा काम क्रोध जै परसै नाहिन। किड्डी वड्डी गल है जी कि किसे दे अंदर काम दा फुरना ही ना पैदा होवे। फिर बेनती क्रोध दा ख्याल भी ना पैदा होवे। काम क्रोध जै परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। अगे महाराज कहने गुर कृपा जे नर को कीनी। फिर याद रखियो जो नर, इनू फिर रमज भरिया शब्द है। ये नहीं क्या भी वो गुरु वो संत, इत्थे लफ्ज जो नर वरते। जो नर दा अर्थ है वो आदमी। ਇਹਦਾ मतलब ये अबख्शिश आम आदमी उत्ते भी हो सकती है। ते शब्द इत्थे वरतिया गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी। महाराज कहने नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। ये गुरु तेग बहादुर साहब दा आपा है। एक शब्द उन्हां दा बसंत राग च ओदी कथा करदे हैं। जदों शब्द आया माई मैं धन पायो हर नाम मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। गुरमुखो इस शब्दां नूं बराबर रख के सी पढ़िए। एक पासे कह रहे ने मन रे कौन कुमाता लीनी, मन की माहे रही। असल च जो अपना आत्मिक जीवन है उन्होंने इस शब्द विच क्या मेरिए मां मैं नाम धन पा लिया है। हुण मेरा मन भटकदा कोई नहीं क्योंकि ये विश्राम भी चला गया है। इन्होंने भटकना नहीं। माई मैं धन पायो हर नाम मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह ए परस न साकै गई भगत भगवान। मेरे कहन तो मुराद जी आप जदों इन्हां शब्दां नूं पढ़ोगे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब विच किरपा करदे। मैं फिर विषय तो दूर ना जावां। मैं बेनती कीती शुकराना। शुकराना हर घटना नाल संबंधित है। भावां कि मैं फिर अर्ज करा शुकराना लफ्ज साडे लई सिर्फ खुशी नाल सुख नाल संबंधित है। पर गुरमत विच शुकराना गुरमुखो चाहे मौत होवे चाहे जन्म होवे वो हर घटना नाल संबंधित है। यही कारण साडे ए मर्यादा विच जो साडी मर्यादा है सिख रहत मर्यादा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आनंद साहब दे पाठ का जिक्र ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी जे मान लो बच्चे का नाम रखना है ना जी ते अरदास तो पहला देग लैके जे आए हैं तो मैं ये बेनती करना हुन्ना कि गुरसिखो याद रखियो गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब कोल देग ही लैके आइए। बाकी सेवा करनी करो लंगर च फ्रूट दी करो मठियाई दी करो क्योंकि गुरु साहब दी मर्यादा अनुसार सतगुरु दे दर ते देग ही प्रवान हुंदी जो आपां कड़ा प्रसाद दी देग लैके जाने। हुण देखो उदों पाठ किया जाता आनंद भया मेरी माए। बच्चे दा नां रखने आनंद भया मेरी माए। विआह करने आनंद भया मेरी माए। गुरमुखो आई तां वरतारा है शुकराने दा। इत्थे जन्म भी आनंद है सच एवे इत्थे विआह भी आनंद है। ते जे किते मौत हो जाए जेड़ा आनंद विआह वेले पढ़िया जाता है वह भी अंतम अरदास तो पहला कहंदे भाई साहब जी पढ़ो आनंद भया मेरी माए। गल फिर बेनती सुनियो आम नॉर्मल जी गल लगती है पर मौत होई पई है ते असीं कहने आनंद भया मेरी माए। ते मैं एक होर बेनती करा साडे बहुत महान विद्वान जेड़े पिछली दिनां च चलाना कर गए डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी साहब दी एक किताब है पटियाला यूनिवर्सिटी ने छापी है अनभव प्रकाश। हाँ अभ्यासियों वास्ते पढ़ने की बहुत कमाल की किताब है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक जिक्र किया मैं ना तां लेना वा कि जिस बंदे ने इन्नी खोज की होवे ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਣਾ भी एक पाप ही समझो। उन्होंने असी बड़ी बारी आनंद ते विचार करने हैं। उन्होंने गल की कहने मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा कहने हर शब्द का प्रतिद्वंद भी शब्द मिलेगा। विपरीत कह लो है ना द्वंद वाला शब्द जिमें सुख है ਇਹਦਾ द्वंदी ਜਿਹੜਾ शब्द है दुख है। मान है ਇਹਦਾ विरोधी अपमान है। उस्तत है ਇਹਦਾ विरोधी निंदिया है।
सुख है एदा विरोधी में उन्हें क्या दुख है, जन्म है एदा विरोधी मरण है, पर आनंद शब्द का प्रतिद्वंद्वी शब्द ही कोई नहीं। फिर बेनती सुनो, बाकी सब दे विरोधी शब्द ने, पर आनंद इथों तक गुरु ग्रंथ साहिब च रब नूं आनंदी साहिब क्या है। मैं फिर बेनती करा, ये सारिया चीज़ां शुकराने नाल जुड़ियां। महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जदों शुकराने की असीं गल करने आ, मैं थोड़ा जिहा फिर आप नूं बेनती करांगा, क्योंकि प्रोफैसर साहब बहुत सियाणे आ, हर वारे करांदे आ ते धक्का कोई नहीं। दस्तार बन्नी मैं पछाण नहीं सकिया ते मैं क्या हुण वधना चाहिदा काम है। हाँ जी, क्यों प्रोफैसर साहब? हाँ जी, मैं इस हक नहीं हुंदा भी जकारा छड्ड दिओ इमोशनल करके, क्योंकि मन नाल लड़ना बड़ा मुश्किल हुंदा है। पर मेरी बेनती है हुण ये फसल वधनी चाहिए गुरु गोबिंद सिंह दी दात जिहड़ी है। खैर हुण देखो जिहड़ा ये शब्द है शुकराना, मैनूं पता है गल मेरी समझणगे। आम तौर पर होर किते हुंदा मैं कथा ना करदा, अगला कहना जी खुशी का काम कीता मौत दे वैण पाई जांदा। इस करके मैं आप नूं बेनती कर लगा, जिहड़ा शुकराना है ना उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब सुरत दी ओ आत्मक जीवन की उच्ची अवस्था है। प्यारे नूं मुहब्बत करदियां कुछ भी वापरे उन्होंने कदी उलांभा नहीं देना, ओदा शुक्र करना। जिवें आप जी पाठ कर दे गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन हुंदा है, फरमान तेरा सिरा ऊपर, कबीर साहिब जी का। तेरा फरमान मैनू सिर मथे प्रमाण है, फरमान तेरा सिरा ऊपर फिर ना करत विचार। जो तू फरमान कर दिता मैं कदी नहीं कहूँगा जो कुछ मेरे नाल करिया इहदे ते दोबारा विचार कर ले, नहीं जो तू कर दिता ठीक। फरमान तेरा सिरा ऊपर फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया, तू ही दरिया है तू ही पार करना। तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी इख्तियार। ओ बंदिया तू बंदगी नू ग्रहण कर, शब्द है इख्तियार, उत्थे लिखा है इख्तियार। बंदे बंदगी इख्तियार ते बंदगी केवल सुख लेनी। साहिब रोज धरो के प्यार, प्यारा भावें गुस्से च होवे ते भावें प्यार करे, बंदगी कदी नहीं छड्डनी। दूसरी बेनती, एक शब्द है बाबा फरीद साहब दा सलोक, क्योंकि शुकराना सिर्फ ओदी प्रसन्नता लैन लिखा है, अपने स्वार्थ नूं सामने रख के नहीं। उन्हां दा बचन है, फरीदा दुख सुख एक कर, सुख ते दुख नूं एक बराबर जान, दिल ते लाहे विकार, अल्लाह भावे सो भला तां लभी दरबार। दुख सुख नूं बराबर जान, अंदरों वकारां दी मैल ला, जो अल्लाह नूं भांदा उहनूं भली कार समझ ले, बस ये जे तेरा भला हो जाएगा। क्योंकि इत्थे मुश्किल आउंदी है, बंदे दे अंदर दी कौमे कहंदी मैं नहीं मान सकदा, मैं ये नहीं कर सकदा। हुण अगली बेनती, जो भाई साहब ने शब्द दिते ने शुकराने दे, अजे मैं हुण शुरू करनी गल शुकराने दे। भाई साहब का एक बचन है गुरदास साहब जी का, गुरमुखां दा, कारण करता जो करे। ये शब्द ध्यान नाल सुनो, जो करे क्या है, कंडीशन नहीं लाई। ਇਹਦਾ मतलब जो करते तू करेगा, जो तुसी करोगे मेरे वालों नहीं कि आ करोगे तो मैं शुक्र करांगा। कहने लगे मैं सिर्फ शुकराना करना आ, ते जो तुसी करोगे मैनू स्वीकार है। कारण करता जो करे, अगे सिर धर मन करे शुकराना, उत्थे लवे नाने नाले शुकराना कि सिर धर मन करे। सिर धर दर ते उन्हें खुशी नाल कबूल करे, ये नहीं मजबूरी समझे। सिर धर मन करे शुकराना, जो करता पुर करे गुरमुखो उस नूं खिड़े मत्थे स्वीकार करके उहदा शुक्र ही करे। मैं आप नूं जिहड़ी अज बेनती करनी है, परमात्मा ने इन्हां तलीम दी दात दित्ती। आप किन्ने संगत विच जिन्हां नूं परमात्मा पदवियां दित्तियां, किसे नूं परमात्मा ने चंगे घर दिते, किसे नूं आत्म साधना दित्ती। बस शुकराना ये वे कि कदी भी परमात्मा दी दित्ती कोई दात लैके हिरदे विचों दाता ना भुले। फिर अर्ज है उस दी दात विचों दातार ना किते भुल जाए। गुरु नानक साहब महाराज जी दा पुरब आ रहा है। देखो हजूर दी 19 रागां च बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब विच। गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने बहुत साडे ते बख्शिश की। पुछो कुछ ना जी, कोई टोटा ही नहीं जो उन्हों का।
जो ना बख्शिश कर दी। मैं एक बारी बेनती की, महाराज हर थां ते गए, हर जगह ते गए, ते जिन्ना सफर गुरु नानक साहब ने रूहानियत राही लोकां दा भला कीता, अज तक इस प्लैनेट ते किसे पीर पैगंबर देवते ने ना सफर नहीं किया जिन्ना सफर गुरु नानक साहब ने किया। पर सैलानी बना के नहीं मैं रूहानी शब्द वरत्या, क्योंकि भाई साहब ने क्या, एक तो सफर बाहर दा फिजिकल ते ओ मैप भी बन गए ने। बाबा जी इन्ने मील तुरदे सन, मैं कई सोचना चंगी गल खोज की ना भी इन्ने मील तुरदे ने। पैरां दे मील तां लभ लांगे, सुरत दे मील किहड़ा लभ के लियाऊगा। बाबा देखा ध्यान तार, जलती सब पृथ्वी दिस आई, सब पृथ्वी दिस आई ध्यान विच है। बाबे डिठी पृथ्वी नवा खंड जिथों तक आई। जिहड़ी ध्यान दी गल है ना प्यारिओ, मेरी फिर बेनती जे, जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रूहानी ने ते जिन्ने ये अपने कलावे विच पूरी मानवता, मैं मानवता शब्द भी छोटा पै जांदा जी जदों असीं कहने मानवता। एक बारी मैं बेनती ऐदकी कीती कथा च भी जदों अरदास च कहने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, ये थोड़ा क्या तेरे भाणे मनुखां दा भला। सरबत दे भले विच हर जड़ चेतन आ जांदा है। आ पंछी, ए पशु, आ कीड़े मकौड़े, हर ओहदे विच सरबत दे विच केवल धरती नहीं, सरबत दे विच दृष्ट अदृष्ट जो कुछ रब ने सिरजिया है, परमात्मा तेरे भले विच सरबत दा भला होवे। फिर बेनती थे कली वंड नहीं पई इंसान मनुख जाति का भला हो, मानव जाति का भला नहीं, सरबत दा भला महाराज जी ने क्या है। हजूर सच्चे पातशाह मैं फिर बेनती करा कि देखो उन्हां दा पुरब आ रहा है। सिंह साहब भी ने, मैं खेड़ा साहब नूं बेनती की, असी उस रात इन्ना को अंदर दी खुशी नूं बाहर भी प्रगट करिए। एक शब्द बाणी, दूसरा भावें सिंह साहब ने कह देना परसों, क्योंकि उन जो कहेंगे उस तरह तुरांगे। कोई घर ऐसा ना होवे, भावें सड़क दे किनारे तू फड़ी ला के रोटी खाना है, उत्थे भी दीपमाला जरूर करी, अज तेरा रब आया है। ते बहुत चंगा होवे जे आपां जपजी साहब दे पाठ अपने नितनेम तो वध क्यों ना कर लईए। अंदर दा दीवा भी बले, बाहर दा दीवा तां हर कोई बाल सकदा है, अंदर दा दीवा गुर प्रसाद नाल बलदा है। मैं बेनती करा, देखो महाराज जिन्ना उन्हां सफर कीता, जिन्ना उन्हां पार उतारा कीता, हर धर्म दा बंदा उन्हां नूं मिलिया। मैं दो सिर्फ उदाहरणां देणियां ने। वेखो कमाइयां वाले ने कहा तेरी कमाई बड़ी है। एक बार मैं अर्ज की, मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल बटाले आई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਠ ਸ਼ਬਦ ਸਾਤ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਟਿਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। भाई कौडा बन गए, जेडे कौडा राक्ष थोड़ा कहता तेरी वड्डी कमाई। कोई पंडित नहीं, काजी नहीं कहता तेरी वड्डी कमाई। ये सिद्ध क्यों कहते पे ने कि बाबे कीती सिद्ध गोठ शब्द सांत सिद्धां विच आई। ओ विच तो कह सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। क्योंकि सिद्ध आम मंगते नहीं सन, ये राजियां दे पुत्र सन। ये जोगी दुनिया दे हर सुख नूं लत मार के तुरे ने। ये बर्फां विच बैठ सकते सन, धूणियां रवा के बैठ सकते सन, एक लत ते खलो के कमाइयां कर सकते सन। कई दहाकियां दी कमाई करन वाले मत्था टेक के कहंदे नहीं बाबा कमाइयां असां भी कीतियां, पर तेरे तो वड्डी कमाई किस दी नहीं, क्योंकि उन्हें कमाई कीती है। मैं बेनती की सज्जन ठग दी की कमाई, वो थोड़ा कहूगा मैं इन्ने मारे तुसीं इन्ने मारे, नहीं। उन्हें कमाई कीती सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ते नाल क्या वड्डा पुरख प्रगटिया। एक वड्डी कमाई ते वड्डा पुरख, इस तो वड्डा दुनिया विच होर कोई महापुरख नहीं। ये सिद्ध शब्द कह रहा। सब तो महंगी कथा सिद्ध गोष्ठ दी है। महंगी तो आप समझदी हो ना जी, आप औखी नहीं कहते। सब तो महंगी कथा, सैकड़े सवाल सिद्ध करते आ, महाराज उन्हां सवालों का उत्तर देंदे आ। मैं फिर बेनती करा, महंगी तां क्या आखरी अर्थ करने सौखे ने।
आ जेड़े सुरत टिकान दे मैन के दंत क्यों खाइए सार त्रै सत उंगल वाऊ ओदो जड़ियां सवासां दियां गल्लां करदे आ उस वास्ते कमाई भी है महाराज थी। हजूर सच्चे पातशाह जी उन्होंने कहा वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। एक मैं बेनती होर आपनू करनी, मैं विषय तो खिंडांगा नहीं, आना फिर उस ते शुकराने ते मेरी इच्छा सी कि बाबा जी का पुरब आ रहा है, अपने नितनेम तो इलावा जपजी साहब सुरत ना पढ़ो ते महाराज जी नू भेटा दिओ। फिर बेनती भेटा दिओ। आप कहोगे जी भेटा की, जदों बाबा जी कहंदे ने फिर के अगे रखी है जिद दिसै दरबार केड़ी भेटा लेके आवां, ते महाराज कहंदे आ भेटा दिया कर अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। आ भेटा है गुरु नानक साहब दी। हजूर सच्चे पातशाह महाराज बगदाद गए आ, आप सब नू पता। मैं एक पौड़ी सिर्फ सांझी करनी है, पौड़ी तो सब नू याद है ते आपां सिर्फ ओदे एक एक नुकते ते रोक के गल करनी। हजूर बगदाद गए। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम मुताबिक बगदाद दा लफ्जी अर्थ है रब दा दिता होया तोहफा। भावें एक कैपिटल है इराक दी, पर उंजे दे अर्थ ने बगदाद दा। एक स्नोबर्ड किताब सी, कविता सी, प्रोफेसर साहब नू पता होना है। हजूर उत्थे गए, बहलोल मिलिया महाराज जी नू। उत्थे कहा जाता है कि जिथे हजूर ने कीर्तन किया, सिमरन किया, ओनू निवाजिया। हजूर दे आउण तो 60 साल बाद 60 सर्दियां ओ बहलोल उत्थे ही उस रस विच बैठा रहा है। 60 सर्दियां क्या, इहदा मतलब 60 साल। प्रोफेसर पूरन सिंह जी किताब चुप प्रीत दा शहनशाह व्यापारी, वो इसे दी व्याख्या है। मैं आप नू बेनती करांगा, हजूर बगदाद गए। ये पाठ है कि फिर बाबा गया, तुहानू सब नू चेते बगदाद नू सीधे पंजाबी दे शब्द ने ना, बाहर जाए किया अस्थाना, बाहर जाके अस्थान उन्होंने एक किया। उंज वैसे चलो स्टेज ते गल नहीं कहनी चाहिए, मैं कमेटी ने करनी से। उत्थे कुछ सिंह अपने अप्रोच कर रहा कि जेड़ा महाराज दा अस्थान उत्थे है वो दोबारा फिर उस तरह कायम हो सके। बगदाद च बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप। वेखो शब्द कितना कमाल दा है, एक बाबा अकाल रूप, क्योंकि अगली जिहड़ी व्याख्या होनी है वो अकाल रूप ही वर्तारा वर्ता सकता है। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। उन्होंने जरूर चेते करियो पुरब नू, रबाबी है हजूर दा। ते 54 साल उस गुरमुख ने कीर्तन किया बाबा जी नाल। 1534 नूं ओहदा चलाना हुंदा है, 1480 नूं बाबा जी दे नाल तुरदा। 54 साल हो गए ना। 1480 नूं तुरदा, 1534 नूं उन्हां दा चलाना हुंदा ते चलाना भी गुरु नानक दी गोदी विच हुंदा है। जो उन्हें प्यार भरे शब्द कहे हुण तां, क्योंकि मिहनत भी नहीं कोई करदा, मैं खौमे च नहीं कह रहा, प्रबंध असी आप नहीं खुद कर रहे, क्योंकि असी उन्हां मसलियां विच उलझे होए हां जिहड़े मसले वक्ती ने ते जिन्हां दा भोग किसी वेले भी पै सकदा है। पुराने समय जन्म साखियां सन। मैं कल पुरातन जन्म साखी दा पाठ करा ते जदों खेत खरे दी गल चली, टिकी हुई शान दी गल चली, ते राय बुलार ने बाबा कालू साहब नूं घर बुलाया। घर बुला के कहंदे ने, कालू मता नानक नूं फिट मार आखदा होवे। शब्द बड़े सोहणे ने, कालू मता नानक नूं फिट मार आखदा होवे। मैं धन हां, मेरे शहर विच आया, तू धन है, तेरा पुत्र बन के आया है। ये महापुरख है, इहदे करके मेरा शहर वसदा है, कदी नानक नूं फिट मारना कहीं होना। शब्द एक कले साखी नहीं, इस करके मेरा शहर वसदा है। आप तुसी जाको 750 मुरब्बा उस राय बुलार ने गुरु नानक साहब दे नाम लाया होया है, जिहड़ा अज तक चलदा है। ये किड्डे मिठे शब्द ने। भाई मरदाना साहब नाल तुरदे, मैं सिर्फ एक होर घटना कह के कि हजूर कीर्तन करदे आ। चलो ठीक है, असी कीर्तन अज टाइम देने जी, इन्ने मिनट इन्ने सकेंट। जदों पैगंबर विच बाणी आउंदी है, उस समय दे पर्दे पाड़ दिंदा है। पैगंबर च आई होया रब्बी सोमा, उन्होंने घंटे च बन सकांगे?
अजकल का बंदा कहेगा नहीं जी ये की परपंच जी। जदों बाणी आउंदी है कई कई पैर हजूर निज आपे विच बैठे रहिंदे आ। फिर मेरी बेनती जे ये कोई आम कविता नहीं सी ड्राइंग रूम च लई पेंसिल ते लिख दिती। जदों बाबा जी ये कहंदे ने छेड़ मर्दानिया रबाब बाणी आई है, खसम दी बाणी आई है, ते गुरु गुरमुखो जदों खसम दी बाणी रोम रोम विच वरतदी है ते बाबा जी दे मुख तो शब्द निकलदा है, वो शब्द किन्ना समा हजूर दे तन उत्ते असर करके रखदा है। उंज तां हर वक्त ही जुड़े आ महाराज शब्द गाउंदे आ। भाई साहब रबाब जांदे ते मैं एक दिन कहा भी किन्ना किन्ना ज़ेन गुरप्रसाद सी। चलो ये कहना भी ये नहीं पता, हुण मैं कथा करना है, मैं भी राज शब्द देखा, भावां कोई शब्द नहीं मैं बोल रहा, कोई कीर्तनिया तैयारी करके जाएगा, मैं की स्टेज पे बोलना है, बाबा जी को तैयारी कर रहे ते मरदाने ने भी नहीं कहा भी केड़ी सुर लानी है, ये भी नहीं पता, शब्द आ रहा है इको दम कहने रबाब छेड़, एक बारी हजूर बोल दिया परत के मरदाना खिन विच चेते करके नाल बोलन लग पैंदा। ओदे अंदर दी इकाग्रता सुर दी। भाई साहब महाराज कीर्तन करते आ, भाई साहब नाल रहिंदे आ, हसदे भी ने महाराज नाल, यार भी ने, भाई भी ने, सेवक भी ने, रबाबी भी ने। सच्ची मुच्ची वक्त के ऊपर लड़ मरन वाला बंदा। एक घटना का जिक्र सिर्फ करके कि कीर्तन किया हजूर बहुत लंबेरा समा टिक के बैठे रहे, वो खब्बे सज्जे किड्डा प्यारा मित्र। जदों कीर्तन करते ने हजूर ते मरदाने दा गोडा बाबे दे मोडे नाल गोडे नाल खैंदा है, ते जदों हजूर अपने आपे च बैठे ने दो चार कदम दूर खलो के बाबा जी की सेवा च खलोता रहिंदा। वो सेवादार भी रबाबी भी। हजूर ने नेत्र बंद सन, महाराज नेत्र खोले ते रबाब गलाफ पा करके कपड़े च लपेट के रख के कहंदा बाबा, सतगुरु ने शब्द वरता है, बाबा असानू विद्या कर अपने नालों, सानू विदायगी दे। महाराज इन्ने रस च बोले, सरूर सन, कहन लगे वे मरदानिया असां दी तेरे ऊपर बहुत खुशी है। महाराज वे शब्द बहुत बोलते सन, हालांकि जन्म साखियां ते है, गुरबाणी च है, जैसी मां आवे कसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, सतवरी कह वे लालो। वे मरदानिया असां दी तेरे ऊपर बहुत खुशी है। वो थोड़ा जा बैठे सन गुस्से च, कहन लगे सुभान तेरी खुशी नू, असां नू विद्या कर अपने नाल। कहने महाराज जी ने किया, बांह पकड़ ली, बांह पकड़ के कहने वे मरदानिया असां नाल रह भी तू, साडे नाल तू रहेगा, सीधे पंजाबी असां नाल रह भी तू। इन्ना कि शब्द क्या कि ना अंदर पिघल गया, नेत्र भर के कहंदा बाबा तू अतीत पुरख है। अतीत दा अर्थ निर्लेप, ना तेनू भुख लगदी है, ना तेनू त्रे लगदी है, ना तेरे ते मौसम मार करदा है, तू अतीत पुरख है। वसदी जाए नहीं, उजाड़ उजाड़ रवे। तुसी उजाड़ां च बहिंदे हो, जिथे वसदी हुंदी दूर चले जांदे हो। वसदी जाए नहीं, उजाड़ उजाड़ रहे। महाराज जी ने फिर क्या, किवें रहे भी मेरे नाल, असां नाल, असां शब्द वरत्या, किवें रहे भी असां नाल। मरदाना चरण पकड़ के कहंदा बाबा जिवें तेनू भुख नहीं लगदी मैनू भी ना लगे, जिवें तुहानू प्यास नहीं लगदी मैनू भी ना लगे, जिवें तुहाडे ते दुख सुख मौसम कोई असर नहीं करदा मेरे ते भी ना करे। ते इको दम हजूर दे सामने महाराज हस के कहंदे वे मरदानिया तैं भली वस्त मंगी। जन्म साखी वाला कहंदा मरदाना उबर बाबे की पैरी पड़िया, आगम निगम दी सोझी होई। हुण जिहड़ी गल कह दित्ती आगम निगम की सोझी होई, ये बड़ी वड्डी गल है रूहानियत विच। हजूर उत्थे गए, मैं खैर ज्यादा नहीं, फिर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। अगे जी दित्ती बांग निवाज कर, ओ बांग जिहड़ी है ओनू भाई मनी सिंह लिखा, गुरबर अकाल चित चरण नाम घर कर प्रणाम सत श्री अकाल। उन्होंने सारी बांग दे लफ्ज दिते आ जिहड़े निहंग सिंह बोलदे आ, गुरबर अकाल, वो शब्द हजूर ने उत्थे वरतिया।
दित्ती बांग निवाज कर। अगली गल है सुन समान होवा जहाना। इत्थे हाथ जोड़ के बेनती जे, इथों थोड़ा जिहा आपां टेक के चलना है। पहले तरत सर ले, दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवा जहाना। साखीकार भावें कह दिंदा भी लोग सुन हो गए, पत्थर हो गए। सुन समान होवा जहाना। जिथों तक गुरु नानक साहब दी आवाज गई, वो आवाज इस तरह गरजी आसमान विच इस तरह गूंजी, जिन्ने जिन्हां दे कन्नां विच पई, कोई घर सी कोई बाहर सी, सारे बंदे गुरु नानक ने अफुर कर दिते। फिर बेनती है, इनू ध्यान नाल सुनो मेरी गल। सुन समान दा अर्थ की है? उंज सुन अवस्था बहुत उच्ची है। जोगी इहदा जिक्र करदे आ। गुरु ग्रंथ साहिब 4 तरह दी सुन कहंदे आ। अंदर सुनंग, अंतर सुनंग, बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनम सुनंग, चौथे सुने जो नर जाने ताको पाप ना पुनंग। सुन समान सीधे लफ्जां च कहां, क्योंकि मेरी कोई अवस्था ते नहीं, इको दम अफुर हो गए। हुण अगली गल, उस बांग नूं जिन्हां जिन्हां दे कन्नां च पई अफुर होए, वो पीर दे कन्नां जदों पई, उन्हें ध्यान ला के देखा है हो की गया है, वो कोल नहीं आया। सुन समान होवा जहाना, सुन मुन नगरी पही। गुरमुखो सुन मुन नगरी पही दा मतलब की है? उस वेले बगदाद पूरे दा पूरा गुरु नानक दे शब्द ने टिका के रख दिता। सुन मुन नगरी पही, देख पीर पया हैराना। फिर गल ध्यान नाल सुनियो, देख पीर। हुण देख दा अर्थ नहीं कोई सामने आ गया, ये क्योंकि पीर दी भी कमाई थोड़ी नहीं सी। जिन्ने बाबा जी नूं पीर फकीर मिले, सिद्ध मिले, चलो पखंडी बड़े मिले, कोई शक नहीं। असी पखंडियां दा ज्यादा जिक्र करने, कमाइयां वालियां दी व्याख्या नहीं कोनी। देख पीर भया खैराना, वो हैरान हो गया। अगली तोके देखा ध्यान लगाए कर। फिर बेनती सुनियो, उन्हें सुरत च वेख्या, कोल नहीं आया। भाई साहब कहंदे ध्यान च वेखदा है, ते की वेखदा है? देखा ध्यान लगाए कर एक फकीर वड्डा मस्ताना। उन्हें ध्यान च देखा, कौन आ गया? मैं रोज बांग अजान असी भी देने आ, पर यह आवाज इन्नी कशिश वाली, ये आवाज इन्नी खिच पाण वाली, ये कौन सी जिदी आवाज ने सारे बंदियां नूं अफुर कर दिता है? मैं फिर बेनती करांगा, बड़े साडे सवाल इत्ते इकट्ठे हुंदे आ, इहदे विच पापी भी होणगे जी, इहदे विच फलाणे भी होणगे। ये गल याद रखियो, रोशनी जदों सूरज बखेरदा ना, वो नहीं वेखदा कूड़े दा ढेर किहड़ा ते चंदन दी लकड़ किहड़ी है। जदों लो पैनी उन्हें सारे उजले कर देने ने। जदों गुरु नानक दे शब्द दी कृपा वरदी, पापी की ते पुन्नी की सारे गुरु रुशना देंदा है। भाई साहब ने लिखा कि देखा ध्यान लगाए कर एक फकीर वड्डा मस्ताना। अजे ध्यान च फिर अगली तो के पुछया फिर कै दर थे कोल आके फिर के घूम के, हुण फिजिकल चल के आया शरीरक तौर ते। पुछया फिर कै दस्तगीर कौन फकीर, ये कौन है किसका करहाना? क्योंकि जेड़े सूफी ने इन्हां दियां वख-वख संप्रदावां, ये केड़े घराने चो होवे, केड़ा फकीर, एदा पिछोकड़ की है? कौन फकीर किसका करहाना? अगो बाबा जी ते नहीं बोले। भाई मरदाना साहब कहंदे आ, नानक कल विच आया, रब फकीर इको पहचाना। ये मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब ने। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती अज करन लगा, गल शुकराने दी घुम घुमा के आपां उत्थे ही आउणा है। बाबा जी दी 19 रागां च बाणी है, व्याख्या अपनी मर्जी नाल असीं करने आ। हर बंदा शब्द दी चोण अपने ढंग नाल करदा है। जिन्हें राजियां दी बेइज्जती करनी, ये तो सच है ना। मोदन मंजी साहब क्या बाबा जी दे वेले सब ठीक होवेगा। चेते रखियो 550 साल हो गए, जेड़े राजे शी मुकदम कुत्ते उहदे सन शब्द अज भी पढ़े जाने उस तरह ने। शब्द टुकाने का मतलब बुराई है। एक मैं ये नहीं कहता बुराई च प्रवृत्त होना चाहिए। रब दी रची हुई रचना विच चानण ते हनेरे ने दोनों ने बराबर चलना है। निराश नहीं होना चाहिए। अपने आप नूं जरूर बेनतियां करिए। इसे करके मैं एक बार कहा सी कि जदों आप जी जपजी साहिब दा पाठ करदे हो, ਜਿਹੜੀਆਂ पौड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने असंख जप, एक बार शायद इत्थे कथा करदे मैं तुहाडे इत्थे कह गया, असंख जप असंख भाव वाली पौड़ी ना सारे दुनिया दे धर्मां विच समेट के बैठी है। याद रखियो, किसी दी पद्धति कोई भी हो सकती,
कोई कीर्तन कर सकता, कोई मौनी हो सकता, कोई बोल सकता, कोई कहे शहीदी होना चाहिए। धर्मी धर्म वाले पासे जा रहे हैं ना। इस पौड़ी नूं वेखो, असंख जप, असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सुर मोह भक सार, असंख मोन नाना नहीं, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत, इत्थे कुदरत दर ते ताकत, बलिहारी कुदरत वसिया नहीं, याद रखो। इत्थे कुदरत दर ते शक्ति। असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार। इत्थे महाराज कहते जो तुद भावै सही भली कर। अर्थ सौखे ने ना, जो तेनू भाउंदा है कार दर ते कम, भली दर ते चंगा, जो तुद भावै साई भली कार। हुण जप भली कारक है, तप भली कारक है। मैं तां कि हर धर्म जिहड़ा अपने ढंग नाल, बाबा जी कहते बड़ी भली कार। अगली पौड़ी पढ़ियो, ਇਹਦੇ ਤੇ नानक शब्द नहीं आया। एक गल होर नोट करियो, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। नानक नहीं आया। अगे बिल्कुल इहदे विपरीत, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पक खाए, असंख निंदक सिर करें पर। इत्थे क्या नानक नीच कह विचार। नीच दे चच्चे नूं औंकड़ है। ग्रामर वाले सज्जन कहंदे आ एक वचन पुलिंग है, ये बाबा जी दे अर्थां झुकेगा। फिर मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, जिथे भले आए, जपी आए, तपी आए, मोनी आए, भावना ले आए, किते नहीं क्या भी मैं भी एक हाँ। उथे क्या नहीं, जो तुद भावै कुदरत कवन कहा विचार। इथे कह लगे नानक नीच कहे विचार। किड्डी निम्रता। नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार। हुण अगली तुक तां ओही है जिहड़ी जप वाली सी। उथे तां कहांगे जप भला, तप भला, सिमरन भला, पर इत्थे गलबड़ हत्या कमाए मूर्ख ने, किन्ने विचारी ने। पर गुरु कह रहे ने कि मेरे मालका नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। एदा मतलब तेरी कार ए भी चंगी है। क्यों? जे चंगियां नूं सांभ के बैठा है ते माड़ियां नूं भी तू ही सांभ के बैठा। मेरी फिर बेनती है, ये नहीं कि आपां किस ये कह रहे हैं भी पाप वाले पासे प्रवृत्त होइए। गुरु नानक साहब ने मेहर की। मैं एक शब्द कह के शुकराना। साडे एक विद्वान कहते हैं चाम, दाम, काम और नाम, ये चार चीजां बंदे दे राज संगल पांदियां ने। फिर लफ्ज़ सुनियो, दाम, चाम, काम और नाम। आप गुरु नानक साहब का पहला शब्द ते शबाणी चेते करया करिए। हाथ जोड़ के बेनती, जे कथा नहीं भी कर दे ते हफ्ते च 2 तुकें चेते कर लीए, क्योंकि उस धन नूं दुनिया की कोई ताकत नहीं खो सकती। बाणी चेते करांगे, जिन्नी वारी पढ़ांगे। ओ गुरमुखो, आ पुजारी नूं कदे देखियो, वो पत्थर दे उत्ते चंदर रगड़ लाए ना जी, महीना चंदर रगड़े ना, उस पत्थर नूं नक लाए, उहदे तो सुगंधी आउण लग पैंदी है। जिहड़ी रसना ते हिरदे ते शब्द रोज रगड़ खाएगा, उत्ते असर क्यों नहीं होवेगा। हजूर सच्चे पातशाह दा शब्द है पहला। अक्सर बंदे कोल जदों दमड़े आउंदे ने, उदों भी नशुकरा हो जांदा है। जदों घर दा सुख आउंदा है, जीवन साथी हुसन वाला मिलता, मैं कोई लुका के नहीं, बाबा जी ने कहा, उदों भी अक्सर बंदा भुल जाता है। जदों जप तप करदियां बचन सिद्धि आउंदी है ते 2-4 हज़ार बंदे मत्था टेकन लग पैण, उदों भी बंदा रब दा शरीक बनना शुरू कर दिंदा है, रब नूं भुल जांदा है। ते जिदन ताकत आउंदी है, राज भाग आउंदा है, बख्श दिया जे, उदों भी बंदे दी मत मारी जांदी है। आ 4 शब्द शुकराने दे, 4 तुका, 4 पदे ने गुरमुखो। ये भी शब्द तुहानूं सब नूं चेते है।
बाबा जी ने किते नहीं कहा भी सिख भिखारी होवे, मंगता होवे, लोकां तो मंगे। मैं पिछले दिन ही कहा सज्जन ठग नूं कहंदे ने वंड दे जो कोई तेरे कोल है, तुनी चंद नूं कहंदे ने वंड दे जो कुछ है, अपना भूमीए नूं कहंदे आ वंड दे जो कुछ इकट्ठा कीती। मानसुख नूं नहीं कहंदे वंड दे जिहदे जहाज चलदे पए ने, ओहदे पैसा ओहदे कोल नहीं। उन्हां नूं पता है भी जिहड़ा इन्हां इकट्ठा कीता पापां दा ते लोकां दा खून पीता, इहनूं कढ करो। मानसुख दी 10 नवां दी किरत जे ईमानदारी नाल सिख दे जहाज भी चलन ते गुरु नूं भी प्रवान। जे बेईमानी करके तू 2 रुपये भी कड्डी जाना ते निमरता च रह, प्रवान नहीं। हजूर ने पहला शब्द क्या, मोती ता मंदर उस रह। याद रखियो ये दाम इन्ना दमड़ा होवे, शुकराना की है। मोती ता मैं इत्थे फिर बेनती करांगा, वेखो जिन्नी को सानू सोझी पैंदी सी संगत नाल शेयर करने हैं, कदी भी अपनी मर्जी नाल गुरबाणी विच वाद घाट ना करिए, खास करके लिखती रूप च। हुण इत्थे शब्द तुसी पढ़ोगे तत्ता है, सारे अक्सर तत्ते नूं कन्ना ला के बोलदे ता। पहली तुक है सतगुरु दी, सोचा सोच, हाँ सोचा सोच, ना नहीं हैगा उथे, उथे लघु है दीर्घ नहीं। जेड़े पोइट्री समझदे नूं पता है कि लघु ते दीर्घ 2 मात्रा ने। पर सियाणे सज्जन चुटकी एक कल असीं गल कर रहे सी, एक चुटकी मारो लघु है, 2 वारी वजन ते दीर्घ है। जदों नन्ने नूं कन्ना ला दोगे पोइट्री विच दीर्घ हो जाएगा, कविता बिगड़ जाती है। उथे बाबा जी ने लघु लिखिया ना, सोचा सोच ना हो बई, सोचा सोच ना वध गई ना मात्रा। इसे तरह इत्थे भी जरा शब्द आया, जरूर नोट रखियो, मेरी बेनती है। मोती ता मंदर उस रहे, जे मोतियां दे घर बन जान, इन्ना परमात्मा तेनू दे, इन्ना वाहिगुरू तेनू दे। लोकी इट्टां दे पत्थरां दे घर बनांदे आ, तेरे घर मोती चिन चिन के बने खोन। मोती ता मंदर उस रहे, रतनी ता हो है जड़ाओ, सीधे ओदे च रतन जड़े खोन। फिर सुनियो, मोती दे महल, रत्ना दी विच जड़त, कस्तूर, कुंगू, अगर, चंदन, लीप आवे चाओ। ओदे विच कस्तूरी, आ कुंगू, केसर, जड़ा अगर है इनू ऊद कहंदे आ फारसी विच। ये रुख दी लकड़ बड़ी खलकी हुंदी है, जदों ये बुढ़ा हो जांदा, वड्डा हो जांदा है, इहदियां गंढां दे विचों सुगंधी बनदी है, ओदे तुबके डिगदे आ, उहनूं चोवा कहंदे आ। चोवा चंदन इकट्ठा हुंदा ना पाठ, ओनू ओ सुगंधी ओदे छिलके दी अगरबत्ती बनदी है, जिहड़ी तुसीं वरदे हो छिलके दी। महाराज कहते मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता खोहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। चलेपण होया होवे आवे चाओ। जदों मैं उस महल च वड़ा ना, मन चाच आ जाए, वाह भी एडा वड्डा महल। अगली गल याद रखियो, मेरी बेनती है, लीप आवे चाओ। इत्थे 3 गल्लां कहियां ने, मत देख भूला, ध्यान दे आ जे, तुक तो सारियां पढ़िए, भूला, मत देख भूला, विसरै। भूला ते विसरे एक नहीं, 3 बारी क्यों कह दिता? मत देख भूला विसरै, ते तीजा शब्द क्या, तेरा चित ना आवे नाउ। ते अगला कहेगा तिन्ना दे अर्थ इको ही ने, भूला विसरै चित ना आवे नाउ। नहीं गुरमुखो, ये अंदर दी ढैंदी कला जदों हुंदी है, 3 वरतारे वरदे आ। इहनूं फिर सुणियो, जदों बंदा धन पदार्थ हुंदा है, सब तो पहला भुलना शुरू करदा। वो नहीं अज तो यार चेता ही नहीं रहा, रहरस दा पाठ नहीं कीता, नितनेम भुल गया। शुरुआत इत्थों हुंदी है, चित ना आवे नाउ, क्योंकि अजे चित च है मैं करना है, दूजे दिन करदा है। पर याद रखियो, टाइम भुलन लग पैंदा, जदों भुलन लगदा है फिर वो भुल इन्नी क वड्डी हो जाती है, विसरना शुरू कर दिंदा। फिर सुनो, ये महाराज ने 3 गल्लां कहियां ने, इहदा अर्थ एक नहीं हैगा। कोश मुताबक अर्थ इको ही है, भूलां विसरै चित ना आवे नाउ। पहला भुलना शुरू किया, भुलन तो बाद अंदरों सदा लई विसरना शुरू हो गया। हुण इन्ना क दूर चला गया, मन इन्ना मैला हो गया,
उस घर नूं वेख वेख के चित्त मैला हो गया। हुण यतन भी करदा, चित्त विच नाम फिर नहीं आउंदा पिया। फिर बेनती भूला विसरै चित्त ना आवे ना। फिर बेनती जी मोती ता मंदिर उसरै रतनी ता खोह जड़ाओ। बाबा जी ये नहीं क्या भी नहीं होने चाहिए। हुण रतनी ता खोह जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। मत देख भूला विसरै तेरा चित्त ना आवे ना। जे इन्ना भी दमड़ा तिलक पैसे नाल ही बनना है ना। मैं दाम शब्द वरत्या, इन्ना दाम तेरे कोल होवे, अरदास करी शुकराना करी तू कति रब नूं विसर ना जाए। रहाओ दियां तुकां ने खार बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ। हजूर गुरमुखो पहला शब्द है ते जिन्हां नूं याद है बड़ी चंगी गल, जिन्हां नूं याद नहीं ना कथा सुन आए हो, गुरपुरब तक के 4 पदे याद कर लो, रोज पढ़िया करो, क्योंकि चेते रहे मेरा बापू कहंदा भुल ना जाई, तू दुनिया च बहुत कुछ पाना है। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ। 2 तुकां रहाओ दी। हुण अगली है, मैं शब्द वरत्या सी पहला दाम फिर चाम, चमड़ी भी बस करांदी बंदे दी। अगे है धरती तां हीरे लाल जड़ती, सारी धरती हीरिया नाल जड़ी जाए। जिहड़ा घर बनिया कंधां ते मोती रतन लगे ने, थल्ले की पाइए, मार्बल नहीं कारपेट नहीं, कहने सारी धरती वेरा वेड़ा जिहड़ा रतना नाल जड़िया, लाला नाल जड़िया होवे, हीरिया नाल। धरती ता हीरे लाल जलती पलंग लाल जड़ाओ। जिस पलंग ते मैं सौना ओदी लकड़ विच लाल लगे होण, सोने दी कढ़ाई होवे। आह चाम अगे की करेगा। धरती ता हीरे लाल जलती पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सो है करा रंग पसाओ। बीबियां भैणां बैठियां, मैं अर्ज जरूर करके जाऊंगा उस कमरे च जिन्हों असी अपना मास्टर बेडरूम कहने, बाबा जी ओदी गल कर रहे जिथे तू सौना है। तेरी जीवन साथन मोहनी तेरे मानू मोहन वाली होवे, ओदे मत्थे दे उत्ते कीमती मणि चमकदी होवे। मोहनी मुख मणि मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ। पसाओ दरते खा पाव। ओदी बॉडी दे एक्शन इनू सच है, आपां लुकाइए ना। गुरु कहंदा तू जे परमार्थ ते तुरना है, इस थां ते पहुंच के भी रब अगे अरदास करी किते नाम भुल ना जाए। मोहनी मुख मणि सह सोए करे रंग पसाओ। पसाओ दरते पसारा करना करना। महाराज कहते मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाउ। पहला दाम मैं शब्द चुने, दूजा चाम। हुण तीसरा शब्द है काम, कामनामा। अगला है सिद्ध होवा, मैं सिद्ध बन जा पहुंच जावा। सिद्ध लाई मैं समाधियां ला के रखा ते फुरना बनावा ते रिदियां मेरे को आ जान, गुप्त ताकत आ जान। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ ते इन्नी ताकत होवे मैं बॉडी विच इत्थे बैठा हुआ ते मैं सारी संगत विचों आलोप हो जा। जिथे मेरा ख्याल भी नहीं उत्थे बॉडी लेके पहुंच जा। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ। गुप्त भी हो जा प्रगट भी, ते मेरी कमाई दे घर घर चर्चे चलन, लोकी मेरे प्रति श्रद्धा रखन, लोक राखै भाओ। इन्नी तू अध्यात्मक तौर ते मैनू ताकत दे दे, पर जे तेरा सिमरन भुल गया मैं की करना रिदियां ते सिद्धियां। महाराज कहते इथों तक पहुंच के भी लोक राखै भाओ। मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाउ, मैं भूल ना जावा। दाम चाम और कामना है ना। हुण अखीर वाला है नाम, नामना। अज शेरे पंजाब दा जन्म दिहाड़ा भी है, ते मैं जो तुरिया मेरे मन च आया। उंज वैसे सवेरे मैं भेजिया सी शाह मुहम्मद दा, महाबली रणजीत सिंह होया पैदा, नाल जोर दे मुल्क हलाए गया। मेरी बेनती है अगे बाबा जी कहते सुल्तान होवा मेल लश्कर, मैं बादशाह बन जावा, सुल्तान बन जावा, फौजां कट्ठियां कर ला। इहदे अर्थ ये भी कीते जांदे आ मेल लश्कर, फौजां कट्ठियां करके सुल्तान बन जावा। अर्थ भी टुकणगे। सुल्तान होवा मेल लश्कर, तख्त राखा पाओ। मैं तख्तां उत्ते पैर रख के बैठा, या तख्तां दा मालिक बना। हुक्म हासिल करी बैठा,
मेरे कोल इन्नी ताकत होवे, हर बंदा मेरे हुक्म दी पालना करने वाला होवे। हुक्म हासिल करी बैठा नानका, सब वाव दर ते वायु हवा, सब दर ते सारे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਗਰੂ ਮੇਰ ਕਰੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। शेरे पंजाब दे जीवन नूं काफ़ी लिखिया, मैं सिर्फ 2-4 मिनट तुहाडे लैणे ने, दो फिर आपां 2-4 मिनट नाम जपांगे, उदों बाद समाप्ति करांगे। ये कुछ मिले तो शुकराना करिए। शुकराना अंदरों सुरत करदी हुंदी, शुकराना सिमरन नाल हुंदा है, शुकराना दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। बहुमुल्ले इतिहासक लेख किताब है सरदार करण सिंह हिस्टोरीअन दी एडिट की, थोड़ा तुसीं टिकाई बनाई रखियो प्लीज। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक साडे बड़े चंगे विद्वान सन संत निहाल सिंह जी केसरी, उन्हां दा जिक्र करदे आ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, कदी तख्त जिवें तख्त सिंघासना ते बहिंदे सन, शेरे पंजाब कदी सिंघासन ते नहीं बैठे। पंजाबी च एक किताब है महाराजा रणजीत सिंह बारे, शेरे पंजाब दा असली रूप, ये भी यूनिवर्सिटी ने छापी है। फकीर वाहुद्दीन दी लिखी, अंग्रेजी तो ट्रांसलेशन की। वो फकीर अजीजुद्दीन दी फैमिली विचों ने, जेड़े पुराने कागज लभे ओहदे विचों ना किताब लिखी हो। अज भी लाहौर जदों जाईदा, करतारपुर जेडे गए होणगे, जिस दिन लागा खुलिया, उन्होंने एडी वड्डी प्रदर्शनी लाई सी, उन्हां कोल बहुत कुछ महाराजा रणजीत सिंह दा पिया होया। वो परिवार अज भी अदब करदा फकीरां दा। उस किताब दे पहला मुखबंद 4 रब्बी हुक्म, उस विच ये भी कहा जांदा जदों जित के किले च प्रवेश कीते, वो तां लिखदा है भी जो उन्हां दीयां लिखतां ने, दर्शन होए, चिट्टे बस्तर सन, चिट्टी दस्तार सी, जगमग करदा चेहरा, उहदे 4 रब्बी हुक्म जिहड़े होए, उहदे विच एक हुक्म सी, रणजीत सिंह तू इस धरती दा महाराजा बन जा रहे हैं, कदी भी सिंघासन ला के तख्तां नहीं बहना, तू सिर्फ चाकर बन के कुर्सी ते ही बहना। उस पूरी डिटेल दिती। जदों कुर्सी बन लगी जी, ते कारीगर वो कुर्सी लंडन पई हुई, कल मैं शेयर की सी, सोना मड़िया है। मैं सैन फ्रांसिस्को वो वेखी सी जी, वो कुर्सी दी बनतर इस तरह जिवें मूड़ा हुंदा है, 2 पासे गद्दियां लगदियां सन। उन्होंने कारीगर नूं कहा तू बनान लगा, फिट कर लगा, सोना हीरे जो मर्जी जड़ी, पर इहदी फिटिंग इस ढंग दी होवे, जदों कुर्सी ते बैठा ये कुर्सी घुम के अमृतसर वाले पासे हो जाए। एक कुर्सी नूं देण वाला गुरु रामदास है। अगली गल उस किताब च लिखे है कि संत निहाल सिंह केसरी होना दा एक बहुत नज़दीकी श्रद्धालु, वो शेरे पंजाब दे किले विच निजी नफर सी, नौकर सी उन्हां दा। वो कहंदा मैं अपनियां अखां नाल देखिया, जदों लाहौर हुंदे सन ते वो घाह दे उपर, किले दे विच घाह सी ते घाह उत्ते बैठ के कहंदा मैं अपनियां अखां नाल पिछे देख के सुने, मेरे कन्नां च बोल पए। वो अमृतसर वल मुंह करके कहंदे सन, श्री अमृतसर साहिब वल मुंह करके कहंदे सन, दाता गुरु रामदास मैं कुछ नहीं पढ़िया, तू मेरे ते मेहर कीती, अपनी इस मानवता दा, अपनी कौम दा मैनू तू चाकर बनाया, तू मेहर करी मैं तेरी सेवा ईमानदारी नाल निभा सका। मैं तुहानू एक बेनती करा, राज दा कंसैप्ट सिखां लई कोई ये नहीं भी नहीं तुसीं करना, पर दुख इस चीज़ दा है ना, राजंगता मानंग अभिमानकता हीनंग। जिदन राज आउंदा हंकार भी उदन आ जांदा है। मेरी फिर बेनती जे, गुरु जी नूं नाल लैके तुरोगे, दुनिया दी कोई ताकत तुहाडी पिठ नहीं लाएगी। गुरु वल पिठा करके दे धारियां वल भजोगे ते राज कदी भी नहीं जे मिलना। राज भाग गुरु दी मेहर हुंदी है। वो शेरे पंजाब दा राज, उन्होंने महसूस सिर्फ लाहौर ही जाके किया जा सकता है।
जदों खेड़ा साहब तुसीं गए जो किले च वड़ने आ ना, वो किला दसदा भी सिख राज की सी। मैं पिछली बारी तुहानूं कहा जदों मैं गया मैंने दिखाया वो सज्जन बहुत केयर टेकर शायद जे नैट ते चलदा सुनदे कौन, उन्हें दिखाया कहंदे ने सारा दिखाया आ इस तरह बनया इस तरह बनया महाराणी जिंदा दी हवेली खड़क सिंह दी हवेली। जदों उत्थे पहुंचे कहंदे आ वो थां है जिथे शेरे पंजाब दी आखिरी वेले मंजी रखी गई सी। सिर्फ फकीर अजीजुद्दीन समझदा सी उहदे इशारियां नूं। आए जदों असीं दरवाजे को लंघे, दूसरी बार जदों मैं गया उस मुसलमान वीर ने बड़े शब्द कहन लगा ये वो दरवाजा है जिथे सिखां दी किस्मत उत्ते छज्जा डिगा सी। कवरनाओ निहाल अंदर थां दिखाई जिथे उहदा सिर भन्निया गया सी। असीं अज उस महाराजे नूं भी याद करने आ। कहना बहुत सौखा है, याद रखियो अज ज्यादा दौड़ ही हुंदी जिन्ना गुरुद्वारा मेरे घर आ जाए, यही है ना, सब कोई मेरे कोल आ जाए। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਲੋ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੋਏ, ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦਾ, ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ तुरे होंदे आ, खजानची पिछे सी क्योंकि माला पैसे विच हुंदे सन, गुथली दे पिछे रह गया। माला किन्नी कीमती, वेख्या बंदा नहीं आया, माला ही मत्था टेक दिता। 4 दरवाजे ने जेड़े जिदन जलोस आइदा उस दिन बदले जांदे आ। एक दरवाजा महाराजा रणजीत सिंह दा है, एक दरवाजा महाराजा खड़क सिंह दी मां दा, एक दरवाजा महाराजा खड़क सिंह दा, एक दरवाजा खड़क सिंह दे घरों कंवर नौ निहाल सिंह दी मां दा चढ़ाया होया है। आप जो इबारत पढ़ते उत्ते उत्थे लिखिया होया सोने की सेवा। सिंह साहब महाराजा रणजीत सिंह गुरु रामदास ने अपना परम सेवक जान के सेवा कराई है। मैं लफजे वरते हैं, ये सारे शुक्र ने। मैं शुरुआत की सी शुकराना रब दे हर वरतारे दा। जफरनामे दे शेर नाल आपां समाप्त करांगे। शुक्र की है? महाराज औरंगजेब नूं कहंदे तुरा गर नजर हस्त बर लश्कर वाजर, तुरा गर नजर हस्त बर लश्कर वाजर। सीधे अर तुरा दर ते तेरी, नजर दर थे निगाह, तेरी नजर बर दर थे उत्ते। तुरा गर नजर हस्त फारसी विच हस्त दर हुंदा है। तुरा गर नजर हस्त बर लश्कर वाजर, लश्कर दर ते फौज, जर दर ते पैसा। तेरी नजर रुपये ते फौज ते है, पर जदों मैं पुत्रां दी लाश को लंघना मारा निगाह अस्त यजदा शुक्र, मेरी नजर रब दे शुकराने विच है। इस करके मेरी बेनती है कि शुक्र जिंदगी च वापरदियां घटनावां बहुत कुछ सिखांदियां ने। असी गृहस्थी हाँ ते गल मैं कई बारी सोचना हुंदा बंदा कि ना हुण आ काम हो गया इदों बाद वेले आ जी। वेले कोई नहीं जे, पात्र बदलते ने, दो खोती खलोता हुंदा है। पहला पुत खलोते होंदे ने, अगा पोते आ जाते। दुख की चीज़ तो उत्थे खलोती रहिंदी आ। ते बाबा जी कह गए गृहस्थ गुटंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग, ये नाल ही चलना है। सतगुरु कृपा करे सानू शुकराने की बिरती बख्श दे। मैं प्रोफैसर साहब का बहुत धन्नवादी हाँ, ये बहुत मुहब्बत करते आ। भाई अजमेर सिंह जी खेड़ा, मैनेजर साहब जी तुहाडा धन्नवाद। जिन्ने गुरमुख तुसीं बैठे हो सेवादार सब का धन्नवाद। गुरु साहब मेहर करन आपां सारे बाणी नाल जुड़िए। जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया गुरमुखो अमृत की दात लईए ते गुरु साहब अगे झोली अड्ड के कहिए अमृत की दात है, हुण रैत विच तूं वरतना है। आपां नहीं रख सकते, तुसीं मेहर करो। सारे अरदास करियो प्रोफैसर साहब दे सारे परिवार नूं। बेटे ने दस्तार बड़ी सोहनी सजाई है, इन्ना सजाई है। असीं ते यही कहांगे गुरु गोबिंद सिंह जी तरस करो, ये दमालड़ा अपना सदा लई बख्श देवो। होइयां भुल्लां बख्श देनियां, जिन्ना जाना है भाई जाओ। 2 मिनट आप नाम जप ली, बस सीधी जी गल है। अच्छा पहला दास बोलेगा, फिर सिंघो तुसी बोलियो,
तीसरे हिते विच बीबियां भैणां किरपा करो सारे अपने अंदर नूं टिका के अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। सिंह बोलो, सिंह पहला। एक आवाज विच बीबियां सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी की हजूरी च बैठदियां उठदियां बाणी दी विचार करदियां गुरमत विचार करदियां एक नहीं बेअंत भुल्लां होईयां ने। सतगुरु जी बख्श देना पढ़दे टक लैने साध संगत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की